السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے ترسول کھنڈ کی داسی ایپیسوڈ نمبر 05۔ کمرے کے انتہائی سرے پر بنی ہوئی کھڑکی کے سامنے ایک نسوانی پیکر موجود تھا۔ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ گہرے نیلے رنگ کے ساٹن کے غرارے اور سفید قمیض میں ملبوس نسوانی پیکر انتہائی متناسب الاعضاء تھا اور اس کے سیاہ بال چوٹی کی شکل میں کمر سے نیچے تک لٹکے ہوئے تھے۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچ گیا، لیکن نسوانی پیکر میری طرف نہیں مڑا۔ سنیے، میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، اور نسوانی جسم میں ہلکی سی تھر تھراہٹ ہوئی اور پھر آنسوں سے لبریز چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اف، وہ حسین کتابی چہرہ کیسا گداز لیے ہوئے تھا۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ بھی براہ راست میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور ان آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ سب لوگ میری طرف سے غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ میں یوسف نہیں ہوں، میرا نام شارک ہے۔ براہ کرم آپ ان سب کو یقین دلائیے۔ وہ بے دستور مجھے دیکھتی رہی اور پھر دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ مجھے معاف کر دو یوسف، مجھے معاف کر دو۔ بہت بڑی سزا دی ہے تم نے مجھے، للہ اب اور سزا نہ دو، مجھے معاف کر دو۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی اور میں تقدیر کے چکر پر ہنس رہا تھا۔ یہ آخری سہارا بھی ٹوٹ گیا تھا۔ وہ مجھ سے لپٹی روتی رہی اور میرا دل پگھلتا رہا۔ اب ان لوگوں کو سمجھانے کا اور کوئی طریقہ میرے ذہن میں نہیں آیا۔ میرے ہاتھ بے اختیار اس کے سر پر پہنچ گیا اور پھر وہ پرسکون ہوتی گئی، اور پھر میں نے اسے مسحری پر بٹھا دیا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ وہ میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی اور میرے جذبات میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی مجھ سے اس قدر محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ حالات سے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ مجھے اپنا شوہر سمجھ رہی ہے، جو اس سے کسی بات پر ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ گویا مجھے اس کے جسم، اس کی ہر چیز پر تصرف کا اختیار ہے، لیکن میں اس معصوم لڑکی کو گناہ کی دلدل میں نہیں دھکیل سکتا۔ اور پھر مجھے سشما کا خیال آیا، اور اس نے بھی تو مجھ سے محبت جتائی تھی۔ وہ بھی تو اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت تھی، لیکن بعد میں وہ کیا نکلی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ہاسدیو کی لاش سشما کی لاش میں بدل گئی تھی۔ میں نے اسے باسدیو سمجھ کر ہی مارا تھا۔ میرے دل میں وحشت بیدار ہونے لگی، کہیں یہ لڑکی بھی تو۔ دوسرے لمحے میں نے اس کے سر کو اپنی گود سے ہٹا دیا۔ بڑا سکون مل رہا ہے یوسف، مجھے اسی طرح رہنے دو۔ کب سے اس گود کے لیے ترس رہی تھی۔ وہ دوبارہ میری گود میں سر رکھتے ہوئے بولی، اور اس بار میں اس کا سر نہ ہٹا سکا، لیکن میرے دل میں بھی شبہ باقی تھا۔ دوسری کوئی شکل باقی نہیں رہی تھی جس کے ذریعے میں ان لوگوں کو اپنی حقیقت کا یقین دلا سکتا۔ رفیہ، میں نے اسے مخاطب کیا کیونکہ اس کا نام یہی میرے سامنے لیا گیا تھا۔ اور اس نے محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ تم مسلمان ہو نا؟ میں نے کہا، اور وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ تم مسلمان ہو رفیہ، کلمہ پڑھو، براہ کرم کلمہ پڑھو، میں نے زور دے کر کہا، اور اس نے جلدی سے کلمہ پڑھ لیا۔ تب میرے دل کو تسلی ہوئی کہ وہ باسدیو کا کوئی دوسرا روپ نہیں۔ شکریہ رفیہ، اب جو کچھ میں پوچھوں گا مجھے اس کا جواب دو۔ وعدہ کرو کہ تم کوئی سوال نہیں کرو گی۔ کیسی بہکی باتیں کرتے ہو یوسف؟ رفیہ، خدا کے لیے کیا تم میرا اتنا سا کہنا نہیں مان سکتی؟ تمہارا کہنا نہ مان کر تو 11 ماہ سزا بھگت رہی ہے۔ باقی گفتگو بعد میں ہوگی، پہلے تم میرے سوالات کا جواب دینے کا وعدہ کرو۔ اور اس نے وعدہ کر لیا۔ تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس سوال پر اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ 1.5 سال۔ تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ شرارت سے باز نہیں آؤ گے تم، اس نے محبوبانہ انداز میں کہا، اور میں نے اسے پھر ٹوک دیا۔ کیوں مجھے بیوقوف بنا رہے ہو؟ ابا میاں کا نام حکیم حسام الدین ہے۔ شکریہ۔ یوسف کا اپنا مکان کہاں ہے؟ بنائے جاؤ تم مجھے احمق، میں اب تمہارے سوالات کے جواب تمہاری مرضی کے مطابق دوں گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں تو یوسف صاحب کا کوئی مکان نہیں ہے؟
दुनिया भर में उनका मेरे अलावा और कोई नहीं। वो अब्बा मियाँ की दरख्वास्त पर हमारे साथ ही रहते हैं, और कुछ बताऊं, वो मेरी हमाकतों से नाराज़ होकर 11 माह कबल यहाँ से चले गए थे, और आकर मेरी पेशमानी और मोहब्बत उन्हें दोबारा यहाँ खींच लाई। वो शरीर लहजे में बोली, वाह रफ़िया, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुम्हारा शोहर नहीं हूं। मुमकिन है कि उसका हम शक्ल हूं। क्या तुम मुझे शादी की या मेरी और कोई तस्वीर दिखा सकती हो? ज़रूर दिखा सकती हूं, और ये भी बता सकती हूं कि आप बहुत बड़े ड्रामा निगार हैं और कोई भी मजाक इंतहाई संजीदगी से करते हैं, उसने कहा और एक तरफ बढ़ गई। फिर उसने अलमारी से एक तस्वीर निकाली और मेरे सामने डाल दी। मैंने बेसब्री से तस्वीर देखी और दंग रह गया। उस तस्वीर में रफ़िया मेरे साथ खड़ी थी। हाँ, वो मैं ही था। अगर ख़ुद मुझे वो तस्वीर दिखाई जाती तो मैं हैरान रह जाता और कि मैंने तो वो तस्वीर कब खिंचवाई। ऐसी मुशाबत पहले कभी नहीं देखी थी। उन गरीबों की गलतफहमी गलत नहीं थी, लेकिन मुसीबत ये थी कि वो किसी सूरत उसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने एक गहरी सांस लेकर उसे वापस कर दी, और उसी वक्त बाहर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी, और फिर तीनों शरीर लड़कियां अंदर घुस आईं। वो तीनों रफ़िया की छोटी बहनें थीं। अंदर आकर वो शरारत अमीज़ गुफ्तगू करती रहीं और मुझे और रफ़िया को छेड़ती रहीं। फिर बाहर से हमारा बुलावा आ गया और उन लोगों को समझाने की मेरी तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। चुनाचा मैंने खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। रात के खाने के बाद वो लोग मुझसे उन 11 माह की मसरूफियात के बारे में पूछते रहे, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि अब वो ये बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं कि मैं यूसुफ नहीं हूँ। चुनाचा उनसे कोई बात मैं नहीं कर सका, और फिर मुझे रफ़िया के साथ उसके कमरे में ही सोने के लिए आना पड़ा। रफ़िया लिबास तब्दील करके मुसहरी पर मेरे पास आ गई। उसकी आंखों से नशा छलक रहा था। 11 माह की दूरी के बाद वो मुझ में समा जाना चाहती थी। मैं भी इंसान था, और फिर खुद उसे गुनाह पर मायल नहीं कर रहा था। मैंने तो अपनी सफाई पेश करने की लाख कोशिश की थी, लेकिन वो माने ही नहीं। ऐसी सूरत में अगर मैं भी जज्बाती हो जाता तो ये मेरा गुनाह ना होता, लेकिन वो लोग इतने सीधे, मुखलस और मासूम थे कि मेरे ज़मीर ने ये धोखाधही बर्दाश्त ना की। रफ़िया अपने शोहर से इश्क करती थी। अगर उसे ज़िंदगी के किसी हिस्से में उसका यूसुफ मिल गया तो शायद वो हसास लड़की खुद को उस गुनाह पर कभी माफ़ ना कर सके। चुनाचा जूँ ही रफ़िया ने अपनी बाहें मेरी गर्दन में डाली, मैंने कदरे सख्ती से काम लेकर उसे खुद से अलहदा कर दिया और वो चौंक पड़ी। चंद लम्हे हैरान नज़रों से मेरी जानब देखती रही, फिर रूहांसे लहजे में बोली, तो तुम अब भी अपना मजाक जारी रखोगे यूसुफ? तुम मेरे जज्बात को इतनी बेरहमी से पामाल कर दोगे? सुनो रफ़िया, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, मैं भी इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ। मेरे दिल में तुम्हें हासिल करने की ख्वाहिश है, लेकिन एक इंसान होने की हैसियत से मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ये गलतफहमी ज़िंदगी के किसी हिस्से में तुम्हें खुदकुशी करने पर मजबूर कर दे। तुम और तुम्हारे घर के सादा दिल लोग उस पर ज़िंदगी भर अफसोस करते रहें। मैं आखिरी बार नहायत संजीदगी से कह रहा हूँ कि मैं यूसुफ नहीं हूँ। मेरा नाम शारक बज़मी है। एक बदनसीब इंसान हूँ, और मुझे ख़तरा है कि तुम लोग भी मेरी बदनसीबी की लपेट में ना आ जाओ। रफ़िया एक झटके से मेरे पास से हट गई। अब शायद उसे कुछ यकीन आता जा रहा था। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखती रही। मैं अपना पूरा ख़ानदान उस नहुसत की नज़र कर चुका हूँ। तुम्हारी दिखाई हुई तस्वीर देखने के बाद मैं तुम्हें कसूरवार नहीं समझता, क्योंकि दर हकीकत तुम्हारे शोहर में और मुझ में हैरत अंगेज़ मुशाबत है। मैंने तुम लोगों को अपने बारे में बताने की लाख कोशिश की। मैंने एक लम्हे के लिए तुम्हें धोखे में नहीं रखा, लेकिन तुमसे कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मुझे यहाँ से चले जाने दो। मैं तुम्हारे ख़ानदान पर नहुसत नहीं लाना चाहता। रफ़िया अब भी दहशत से ज़दा नज़रों से मुझे देख रही थी, और उसके चेहरे पर अब बेइत्मीनानी के आसार पैदा होने लगे, जिन्हें मैंने बखूबी महसूस कर लिया, और जल्दी से बोला, मुझसे खौफ मत खाओ। एक औरत होने की हैसियत से तुम मेरे लिए मुक़द्दस हो। तुमने महसूस किया होगा कि अभी तक मैंने तुम्हारी गलतफहमी से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। मेरे इन अल्फाज से रफ़िया की दहशत कदरे कम हुई, लेकिन उसके अंदाज से गमो अंदोज झलकने लगा, और वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली, फिर तुम कौन हो?
मैं तुम्हें अपना नाम बता चुका हूँ। मेरा नाम शारक बज़मी है। अफसाना निगार था, लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी पर नहूसत का साया पड़ गया और मैं दर बदर हो गया। माँ बाप बहन भाई सब खो बैठा और अब ज़माने की ठोकरों में हूँ। मेरी दुआ है कि तुम्हारा यूसुफ वापस आ जाए और मुझे मुसर्रत है कि एक मर्द होने की हैसियत से मैंने भरम कायम रखा। यूसुफ के आ जाने के बाद तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, उसने डूबती हुई आवाज़ में कहा और सिसकियाँ लेने लगी। फिर आंसू पूंछ कर बोली कि अगर दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम हमारे पास रहो। तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नेक दिल खातून, आप उस नहूसत का तसव्वुर नहीं कर सकती जो मेरे ऊपर मुसल्लत है। मैं आपकी खुशियाँ नहीं छीनूंगा। यहाँ कौन खुश है? रफ़िया ने होंठ सिकोड़ कर कहा। और फिर मैं उन बातों को नहीं मानती। इंसान बेज़ाते खुद कुछ नहीं। नहूसत इंसान की अपनी कोताहियों की पैदावार होती है। आप यहीं रहेंगे। मैं आपको आपकी दास्तान सुनाने के लिए मजबूर नहीं करूँगी, लेकिन मुझे तजस्सुस ज़रूर रहेगा। मैं गर्दन झुकाकर उस नेक दिल लड़की की गुफ्तगू सुनता रहा। कितने अजीम थे ये लोग, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि मेरे ऊपर कौन सी नहूसत है। मैं बासदियों के अल्फाज से खौफज़दा था और उसने मुझे वार्निंग दी थी कि मेरी वजह से बहुत से ख़ानदानों पर मुसीबत नाज़िल होगी। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। मेरा यहाँ रहना किसी तरह दुरुस्त नहीं। खुदा का शुक्र है कि तुम्हें मेरी बात का यकीन आ गया। अब मुझे यहाँ से चला जाने दो। यही मेरे और तुम्हारे लिए मुनासिब है। बराह करम ज़िद मत करो। कल सुबह तुम अब्बा जान से मुलाकात करके जाना। मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। वैसे क्या तुम मुझे ये भी नहीं बताओगे कि इस तरफ मेरा मतलब है कि इस कोठी में कैसे आ निकले? खातून, ये बताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुमकिन है कि मेरी बात पर तुम्हें यकीन भी ना आए। इस मसले पर खामोशी ही इख्तियार करो। बहरहाल मैं तुम्हारे कहने से सुबह का इंतज़ार करूँगा और सुबह को मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मेरे लिए किसी दूसरी जगह का बंदोबस्त कर दो। तुम इस कमरे में आराम करो, मैं अपनी बहनों के कमरे में सो जाऊंगी, रफ़िया ने कहा और दूसरा लिबास पहनने चली गई और फिर वो खामोशी से कमरे से निकल गई। मेरा दिल फिर गम की तारीकियों में डूब गया। कैसा बदनसीब हूँ मैं। खुशियाँ मुझसे किस कदर दूर चली गई। रात का बकिया हिस्सा मैंने करवटें बदलते गुजारा। मुझे मनहूस बासदियों पर शदीद गुस्सा आ गया था। एक आध बार मेरे जहन में ये ख्याल भी आया कि क्यों ना मैं इस जलील की बात मानकर अपनी मुसीबतें दूर कर लूँ। मैंने संजीदगी से सोचा कि आखिर वो मेरे ज़रिए ही क्यों इस वीरान मस्जिद में दाखिल होना चाहता है। वो ऐसी ज़बरदस्त कुव्वतों का मालिक है, जो चाहे कर सकता है, लेकिन वो मस्जिद में क्यों नहीं दाखिल हो सकता। तमाम वाक़यात मेरी नज़रों में घूम गए। मस्जिद के दरवाजे में शेर नज़र आना, शोले भड़क उठना और फिर एक नाकाबिले अबूर खंदक बन जाना। गोया कुछ कुव्वतें उसे मस्जिद में दाखिल होने से रोक रही हैं। वो कौन सी कुव्वतें हैं? यकीनन वो कुव्वतें बासदियों से ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन फिर वो कुव्वतें मेरी मदद क्यों नहीं करती? एक बेगुनाह इंसान उनके और बासदियों के झगड़े में फंसकर बर्बाद हो रहा है। आखिर वो कुव्वतें मुझे नहीं बचा सकती, तो क्यों ना मैं बासदियों के लिए काम करूं? ये नया ख्याल था जो मेरे जहन में आया। मैंने गौर किया तो पता चला कि मेरी ज़िद बेकार थी। कोई अजनबी कुव्वत मुझे बासदियों से नफ़रत पर मजबूर कर रही थी, वरना जो ज़िंदगी मुझे मिली थी उससे बासदियों की अतात। लेकिन मैं अभी यहीं तक सोचने पाया था कि अचानक मेरे जहन पर ताला लग गया। मेरा दिमाग तारीक हो गया और सुबह तक मैं सोचने समझने के काबिल नहीं रहा। मैं उसे नींद की कैफियत में अभी नहीं कह सकता था, बस एक अजीब आलम था और इस आलम से ना जाने कब मैं निकलता कि दरवाज़े पर होने वाली दर्दराहट ने मुझे उस पुरइसरार नींद से बेदार कर दिया। दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाया जा रहा था। मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर हकीम साहब और उनका नौजवान लड़का खड़े हुए थे और उनके चेहरे पर बदहवासी छाई हुई थी। नौजवान के हाथ में एक तस्वीर थी। हकीम साहब ने वो तस्वीर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या ये तुम्हारी तस्वीर है यूसुफ मियाँ? मैंने तस्वीर देखी और कहा, जी हाँ, ये मेरी ही तस्वीर है। मगर वो तो तुम्हारा नाम शारक ले रहे हैं। हकीम साहब ने घबराए हुए लहजे में बोला। कौन? मैंने बदहवासी से पूछा। पुलिस वाले। उन्होंने चारों तरफ से कोठी घेर ली है। इंस्पेक्टर और कुछ दूसरे पुलिस वाले ड्राइंग रूम में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ज़रा रफ़िया को जगा दो, हकीम साहब ने कहा। मैं सकते में रह गया था। मेरे कानों में बासदियों के अल्फाज गूंज रहे थे। तुम्हारी वजह से कुछ दूसरे ख़ानदान
मुसीबत का शिकार होंगे तो उन लोगों पर भी मुसीबत नादल हो गई। रफ़िया रफ़िया, हकीम साहब कमरे की तरफ मुंह करके रफ़िया को आवाज़ देने लगे और रफ़िया दूसरे कमरे से निकल आई। क्या बात है अब्बा जान, उसने भराए हुए लहजे में कहा, और हकीम साहब चौंक कर उस कमरे की तरफ देखने लगे जिधर से रफ़िया की आवाज़ सुनाई दी। बेटी को दूसरे कमरे से निकलते देखकर उनके चेहरे पर कदरे इत्मीनान के आसार नमूदार हो गए थे। रफ़िया की आंखें सुर्ख और चेहरा भरभराया हुआ था, जिससे अंदाज़ा होता था कि वो रात भर नहीं सो सकी। पुलिस आई है और उनका नाम शारक ले रही है। क्या ये यूसुफ नहीं है? पुलिस आई है, रफ़िया खोए हुए लहजे में बोली, और उसका रंग भी फक हो गया था। उसने घबराई हुई नज़रों से मुझे देखा। मैं अब होश में आ गया था। चुनाचा उन दोनों को उसी तरह छोड़कर मैं ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। हकीम साहब के कहने के मुताबिक ड्राइंग रूम में एक इंस्पेक्टर और दूसरे लोग मौजूद थे। मुझे देखते ही इंस्पेक्टर खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर तंज के आसार थे। तो तुम यहाँ छुपे हुए हो, उसने कहा और सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने मेरे हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी। इतनी देर में हकीम साहब और घर के दूसरे लोग भी ड्राइंग रूम में पहुँच गए। कीवा 3 बाहर खड़ी हो गई थीं। हमें अफसोस है हकीम साहब, आप एक मुअज़्ज़ज़ इंसान हैं, लेकिन एक ख़तरनाक मुजरम आपके घर से बरामद हुआ है, इसलिए हम आपको भी पुलिस स्टेशन ले जाने पर मजबूर हैं। मैं ज़ाती तौर पर सिर्फ इतनी रियायत कर सकता हूं कि आपको हथकड़ियाँ लगाकर ना ले जाऊं, इंस्पेक्टर ने कहा, और हकीम साहब कुछ ना बोल सके। मगर यूसुफ मियाँ का कसूर क्या है हकीम साहब? हकीम साहब की बेगम लरजते हुए लहजे में बोली। इसका नाम यूसुफ नहीं ही शारक है मोहतरमा, और उसने एक रकासा को कत्ल किया है और जेल तोड़कर फरार हुआ है। जेल से फरार होने की कोशिश में उसने 3 पुलिस वालों को ज़ख्मी किया, जिनमें से एक चल बसा, और इस तरह ये दोहरे कत्ल का मुजरम है। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, और ये जवाब सुनकर बेगम साहिबा धम से नीचे गिर पड़ी। वो बेहोश हो गई थी। बहरहाल 2 पुलिस वाले हकीम साहब के बाजू पकड़कर उन्हें बाहर ले चले। बाकी मुझे बाहर ले आए, जहां पुलिस जीप खड़ी थी, और थोड़ी देर के बाद हम हवालात में थे। मुझे अपनी गिरफ्तारी पर ज़रा बराबर अफसोस नहीं था, लेकिन गरीब हकीम साहब तो बेगुनाह थे। वो सिर्फ मेरी नहूसत का शिकार थे। मैं उनके लिए क्या करूं? हकीम साहब सख्ते की कैफियत में थे। वो हवालात के एक कोने में बैठे हुए थे। मैंने और दूसरे कैदियों ने उन्हें मुखातब करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। हकीम साहब की इस हालत पर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन मैं मजबूर था। अब तो बासदियों को गालियां और कोसने देते देते भी दिल उकता गया था। कोई फ़ायदा नहीं था। शाम तक हकीम साहब की ज़मानत हो गई और वो चले गए। मुझे अलबत्ता दूसरे रोज़ फिर जेल भेज दिया गया, और इस बार मेरे ऊपर ख़तरनाक कैदी की छाप लगी हुई थी, और जेल में मेरे हथकड़ियों के अलावा बेड़ियाँ भी डाल दी गईं। हकीम साहब की ज़मानत होने से मैं कदरे मुतमिन हो गया। मुझे यकीन था कि वो किसी न किसी तरह बरी हो जाएंगे। रही मेरी बात, तो मेरा क्या है? मेरे लिए कैद और आज़ादी में कोई फ़र्क नहीं था। मुझे इस दोहरे कत्ल के इल्ज़ाम पर कोई तरद्दुद नहीं था। कोई तो सूरत ऐसी हो कि मैं मौत को गले लगा सकूं। चौथे रोज़ अदालत में मेरी पेशी हुई। हकीम साहब और उनके अहले ख़ानदान भी आए थे। बेचारे हकीम साहब को कटहरे में खड़े देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। रफ़िया और हकीम साहब की दूसरी लड़कियां भी थी। सब खाओ बड़ी नज़रों से मुझे देख रही थी। बहरहाल मेरा बयान लिया गया, और सबसे पहले हकीम साहब से मेरी शनासाई या रिश्ते के बारे में सवाल किया गया। मेरा इनसे कोई तल्लुक़ नहीं है, मैंने साफ आवाज़ में कहा। जेल से भागने के बाद मैं इनके यहाँ पहुँचा, और मैंने इन्हें अपना नाम यूसुफ बताया और एक फ़र्दी कहानी सुनाकर उन लोगों को मोम कर लिया। उन्होंने तरस खाकर मुझे अपने यहाँ पनाह दे दी। मेरा इरादा था कि मौका मिलते ही इनके यहाँ से कीमती असबाब लेकर फ़रार हो जाऊँ। इस सिलसिले में मैं उनकी कीमती सामान का खोज लगा रहा था। मैंने साफ महसूस किया कि मेरे इस बयान से हकीम साहब और उनके अहले ख़ानदान दंग रह गए थे। उसके अलावा हकीम साहब की पोजीशन बिल्कुल साफ़ हो गई। चुनाचा मजिस्ट्रेट के हुक्म से हकीम साहब को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया, और उसके बाद आइंदा के लिए तारीख पड़ गई। दूसरे दिन जेल में एक सिपाही ने बताया कि कुछ लोग मुझसे मुलाकात के लिए आए हैं, और मैं हैरान रह गया। पूरी दुनिया में मेरा तो कोई था नहीं, मुझसे कौन मिलने आ सकता था? मेरा ख्याल हकीम साहब की तरफ गया। मुमकिन है कि वो लोग मेरे बयान पर मेरा शुक्रिया अदा करने आए हों।
اور میرا خیال درست ہی نکلا۔ حکیم صاحب کا پورا خاندان مجھ سے ملنے آیا تھا۔ میں نے انہیں دیکھ کر گردن جھکا لی۔ شارک بیٹے، حکیم صاحب روندے ہوئے گلے سے بولے، مجھے رفیہ کی زبانی تمہاری عظمت کے بارے میں معلوم ہوا، اور اس کے بعد تم نے عدالت میں میرے بارے میں جو بیان دیا اس سے تمہاری شرافت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ میرے بیٹے، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میرے لیے، اور میں نے جذبات سے پھٹتے ہوئے سینے پر قابو پاتے ہوئے کہا، صرف دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری مشکل آسان فرمائے۔ میں موت کا خواہشمند ہوں۔ صرف موت ہی میری مصیبت کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ اور میرے ان الفاظ پر رفیہ سسک پڑی اور دوسری لڑکیوں کی آنکھیں بھی پرنم تھیں۔ مایوس نہ ہو بیٹے، مایوسی کفر ہے۔ بدقسمتی سے ہماری غلط فہمی کی وجہ سے ہم تم سے تمہارے بارے میں کچھ نہیں معلوم کر سکے۔ بہرحال مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ کیا در حقیقت تم نے کسی رقاصہ کو قتل کیا ہے، اور کیا تم جیل سے فرار ہوئے تھے؟ میں نے یہ دونوں کام کیے ہیں، لیکن عالم ہوش میں نہیں۔ ایک منحوس قوت میرے اوپر مسلط ہے، مگر اس پر کون یقین کر سکتا ہے، اور میں یقین کرانا بھی نہیں چاہتا۔ اگر میں ایک الزام سے بری ہو جاؤں تو دوسرے سینکڑوں الزامات میرے اوپر عائد ہوتے رہیں گے۔ میرے لیے صرف موت کی دعا کرے محترم۔ باوجود ضبط کے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور حکیم صاحب بھی رو پڑے۔ میں تمہارے لیے اس شہر کا سب سے بڑا وکیل کروں گا، تم فکر مت کرو، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ خدا کے واسطے میری درخواست ہے، آپ کو خدا کی قسم میرے لیے کچھ نہ کریں، ورنہ آپ بھی اس شیطانی قوت کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ نہیں جانتے، آپ کچھ بھی نہیں جانتے، میں نے لرز کر کہا۔ لیکن حکیم صاحب پھر بھی مجھے تسلیاں دیتے رہے، اور ملاقات کا وقت ختم ہو گیا اور وہ چلے گئے، اور میں اس تاریک کوٹری میں موت کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری پیشی پر حکیم صاحب نے حسب وعدہ میرے لیے ایک قابل وکیل کو کیا، اور وکیل نے پیشی سے ایک دن قبل مجھ سے ملاقات کی، اور اس نے مجھ سے معلومات حاصل کی، لیکن میں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ البتہ عدالت میں وہ پھر میرے پاس آیا۔ کیوں اپنی زندگی کے گاہک ہو، مجھے تفصیل بتاؤ تاکہ میں دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں بچا سکتی۔ وکیل صاحب، آپ بلا وجہ زحمت کر رہے ہیں، براہ کرم اپنا وقت ضائع نہ کریں، میں نے خشک لہجے میں کہا، اور وکیل نے حکیم صاحب کو میرے بارے میں بتایا، جو خود بھی کمرہ عدالت کے باہر تھے۔ حکیم صاحب نے خود مجھ سے گفتگو کی، لیکن میں نے ان سے بھی وہی الفاظ کہے۔ بہرحال وکیل صاحب اور حکیم صاحب میرے بیانات تک وہاں رکے، اور میں نے اپنے بیان میں صاف صاف کہہ دیا کہ میں نے جان بوجھ کر دونوں قتل کیے ہیں، اور پوری سزا کا مستحق ہوں۔ وکیل صاحب اور حکیم صاحب کی گردن لٹک گئی، میرے مقدمے کی پھر تاریخ پڑ گئی، اور میں دوبارہ جیل آ گیا۔ میری منحوس زندگی کے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے کہ ایک روز میری زندگی میں پھر ایک شدید طوفان سے دوچار ہو گئی۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا، اور ذہن و دل میں ہلچل مچ گئی۔ اس روز مجھے تھوڑی دیر کے لیے جیل کی کوٹری سے باہر نکالا گیا تھا تاکہ چہل قدمی کر لوں۔ میرے ہاتھ میں دستور پشت پر بندھے ہوئے تھے، لیکن بیڑیاں کھول دی گئی تھیں۔ گو میرا جرم بہت شدید تھا۔ جیل کے حکام مجھ سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ ان کی دانست میں نے جیل کے ایک محافظ کو قتل اور دوسرے کو شدید زخمی کر دیا تھا، لیکن خود جیل کے اندر میرا رویہ ایسا تھا کہ انہیں کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ اس لیے تک نفرت کے باوجود مجھے بھی دوسرے قیدیوں کی سی مراعات حاصل تھی۔ میں چہل قدمی کرتا ہوا دوسری بیرک کی طرف جا نکلا، اور میں نے دیکھا کہ دو سپاہی ایک نئے قیدی کو کوٹری کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایسے مناظر جیل کے لیے نہیں ہوتے، لیکن نہ جانے میرا دل کیوں دھڑک اٹھا، اور میں نے اس نئے قیدی کو دیکھنے کی کوشش کی اور اسے دیکھ بھی لیا، لیکن اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں تاریکی پھیل گئی۔ مجھے بڑے زور کا چکر آ گیا، اور میں زمین پر بیٹھ گیا۔ اوہ میرے خدا، وہ عارف تھا، میرا چھوٹا بھائی، جو مجھ سے ناراض ہو کر گھر سے بھاگ آیا تھا، جو غلط صحبت میں پڑ کر بگڑ گیا تھا، اور آخر اس کی صحبت رنگ لائی اور وہ جیل تک پہنچ گیا۔ میں نے جب بھی ٹھنڈے دل سے اپنے خاندان کی تباہی کے بارے میں سوچا تو اس میں صرف میرا ہی ہاتھ کار فرما نظر آیا۔ باسدیوں نے میری وجہ سے اس پورے خاندان کو برباد کر دیا تھا۔ اگر ابتدا نہ ہوتی تو ہم تارا گڑھ میں اپنے خوبصورت مکان میں ہوتے، میں کہانیاں لکھ رہا ہوتا، عارف پڑھ رہا ہوتا، اور شاہدہ کی شادی کسی عمدہ جگہ ہو گئی ہوتی۔ جو کچھ ہوا میری وجہ سے ہوا، اور میرا دل چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑوں، لیکن میں نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ یہاں بیٹھ کر رونا بھی حماقت تھی۔ دوسرے لوگ یا تو بزدل سمجھتے یا پاگل۔
थोड़ी देर के बाद मैं अपनी कोठरी में आ गया, लेकिन मेरा दिल आरफ के लिए तड़प रहा था। आरफ मेरा भाई, वो जेल में क्यों आया था और उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन मेरे सोचने से क्या हो सकता था। उस रात मैं बुरी तरह तड़पता रहा, एक लहज़ा नींद नहीं आई थी। दूसरे दिन मैंने मुख्तलिफ ज़राए से आरफ के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू कर दी और शाम तक मुझे आरफ की कहानी मालूम हो गई। आरफ एक जेब कतरे की हैसियत से पकड़ा गया था, लेकिन उसका जुर्म सिर्फ जेब तलाशी नहीं था, बल्कि जेब तलाशी के दौरान जब भी कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया तो उसने अपनी जान बचाने के लिए एक शख्स के चाकू घोंप दिया, जिससे वो हलाक हो गया। और अब आरफ फिर दोहरा इल्ज़ाम था, यानी जेब तलाशी और कत्ल, और उस जुर्म में उसे फांसी तक हो सकती थी। आरफ को फांसी हो जाएगी। मेरे जहन में बम फट पड़ा। ये नामुमकिन है, मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन आरफ बेगुनाह है, उसे फांसी नहीं होनी चाहिए। मैं तो ज़िंदगी से बेजार था, लेकिन आरफ ने अभी क्या देखा है। नहीं, मैं अपने भाई को फांसी नहीं होने दूंगा। ये नामुमकिन है कि मेरी ज़िंदगी में उसे फांसी हो जाए, लेकिन मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मैं सर झुकाकर कुछ सोचने लगा और अचानक मेरे अंदर से एक नया इंसान उभरने लगा, एक बागी इंसान जो बेहद नडर, बेहद चालाक और शफाक था। मैं इस नए इंसान को देखकर खुद भी हैरान था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा अपना वजूद तहलील हो गया और नया इंसान पूरी तरह बेदार हो गया। ये दुनिया ज़ालिमों की जन्नत है, मज़लूम को हर जगह ठुकराया जाता है, फिर क्यों ना ज़ालिम बना जाए। मज़लूम बनने की क्या ज़रूरत है। मज़लूम की कोई आवाज़ नहीं होती, वो सिर्फ पिसने के लिए पैदा होता है। और उस नए इंसान ने, जो ज़ालिम शफाक था, मेरे ऊपर पूरी तरह काबू पा लिया। मेरे सोचने का अंदाज़ बदल गया। मैं आरफ को ज़रूर बचा लूँगा, मुझे एतमाद हो गया। और फिर मैं रात होने का इंतज़ार करने लगा। रात हो गई, जेल की दुनिया खामोश हो गई। ना जाने कितने जाग रहे थे, रो रहे थे, क्या कर रहे थे। मैं खड़ा हो गया। जेल की कोठरी तारीक थी, लेकिन बाहर रोशनी थी। रात की ड्यूटी के 2 मुहाफ़िज़ हमारी बैरक में टहल रहे थे और फिर एक मुहाफ़िज़ के कदमों की आवाज़ मुझे अपनी कोठरी की तरफ आती महसूस हुई और मैं अपने ड्रामे के लिए तैयार हो गया। मैंने दांतों से अपनी कलाई में काट लिया और थोड़ा सा खून निकल आया। फिर मैं कोठरी के सलाखों वाले दरवाजे के करीब ही ज़मीन पर लेट गया और मेरे हलक से अज़ियतनाक कराहें निकलने लगी। लेकिन मैंने इसका ख्याल रखा था कि शोर ज़्यादा ना होने पाए, वरना दूसरे कैदी भी जाग उठते और मेरा काम मुश्किल हो जाता। मेरी कोशिश बार आवर रही और ड्यूटी गार्ड मेरी तरफ मतवज्जा हो गया और उसने एक बड़ी टार्च की रोशनी मेरे ऊपर डाली और जल्दी से दरवाजे के करीब पहुंच गया। क्या बात है, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? उसने हमदर्दी से पूछा। सांप, मेरे सांप ने काट लिया है, सांप उधर भाग गया है, मैंने डूबते लहजे में कहा और अपनी कलाई सामने कर दी। उसने जल्दी से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला और मुझे बाहर ले जाने के लिए संभाला। शायद मुझे जेल के अस्पताल में ले जाना चाहता था, लेकिन उस गरीब को हमदर्दी की कीमत महंगी पड़ी और मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली और उस वक्त तक दबाता रहा जब तक उसका दम ना निकल गया। न जाने कहाँ से मेरे हाथों में वो अफरीती कुव्वत आ गई थी। सिपाही को कत्ल करके मैंने उसकी राइफल संभाली और कारतूसों की पेटी से कुछ कारतूस निकालकर जेब में ठोंसे और बाहर निकल आया। फिर मैं छुपता छुपाता आगे बढ़ा। दूसरे मुहाफ़िज़ के कदमों की चाप ज़्यादा दूर नहीं थी। मैं राहदारी के मोड़ पर पहुंच गया, जिससे मुड़ते ही वो कोठरी थी जिसमें आरफ कैद था, और मैंने ज़रा सी गर्दन निकालकर दूसरी तरफ देखा। सिपाही मुझसे सिर्फ चंद कदम के फासले पर थे और उसका रुख दूसरी तरफ था, और मैंने राइफल की संगीन सीधी की और पूरी कुव्वत से उसकी पुश्त में घसेड़ दी। उसके साथ ही मैंने राइफल छोड़ दी और लपक कर सिपाही का मुंह भींच लिया। दूसरा बेगुनाह भी मेरे हाथों में कत्ल हो गया, लेकिन अब मुझे किसी बात का अफसोस नहीं था। मैं जालिम बन गया था। मैंने उस मुर्दा सिपाही की कमर टटोली और चाबियों का गुच्छा निकाल लिया, और फिर मेरे हाथ फुर्ती से वो चाबी तलाश करने लगे जो आरफ की कोठरी का दरवाज़ा खोलती। आरफ की कोठरी के तमाम कैदी शायद सो रहे थे, क्योंकि आहट सुनकर भी किसी ने कोई आवाज़ नहीं निकाली। कई चाबियों से कोशिश करने के बाद आखिर एक चाबी से ताला खुल गया और मैं अंदर दाखिल हो गया। मैंने सिपाही की टार्च ले ली और फिर अंदर घुसकर मैंने टार्च जलाई। आरफ एक कंबल पर लिपटा सो रहा था। मैं झुका और आहिस्ता से उसे झंझोड़ा और उसके साथ ही उसके कान के करीब सरगोशी की। आरफ, आरफ, जाग जाओ, ये मैं हूँ, तुम्हारा भाई शारक। और आरफ जाग गया।
वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रहा था। उठो, वक्त नहीं है, पूरी तरह होशियार हो जाओ, मैंने कहा और आरफ जल्दी से उठ गया। मैंने उसका बाजू पकड़ा और बाहर निकल आया। आरफ ने मुर्दा सिपाही को देखा और उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। उसने नहायत सफाकी से उसके जिस्म में घुसी हुई राइफल खींच ली और मैंने दूसरी राइफल संभाली। आरफ ने भी बिल्कुल मेरे अंदाज में कारतूस हासिल किए और उसके बाद हम जेल के दूसरे हिस्से की तरफ चल पड़े। मैं जेल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, चुनाचा मैं आरफ को एक ऐसे हिस्से में ले आया जहां दरख्त लगे हुए थे और ये दरख्त जेल की चहार दीवारी के साथ थे। जेल के सर्च टावर पर लाइट घूम रही थी और सिपाही होशियार थे। हम दोनों दरख्तों पर चढ़कर चार दीवारी पर पहुंचे और अब नीचे उतरने का मसला था। आप नीचे कूद सकते हैं भाईजान, आरफ ने सरगोशी की। हाँ, मैं तो सब कुछ कर लूँगा, मगर तुम मेरी फिक्र ना करें, मुझे ऐसे कामों की पूरी महारत है, आरफ ने कहा और दोनों पंजे जोड़कर कूद गया। ज़रा सी भी आवाज़ नहीं थी और मैंने भी नीचे छलांग लगा दी, लेकिन मैं अनाड़ी था और अगर आरफ मुझे ना संभालता तो मेरे काफ़ी चोट लगती। अब हमें आखिरी काम करना था, यानी उन रोशनियों से बच कर निकल जाना, और फिर दोनों इंतहाई महारत से रोशनियों के ज़िद से बचते हुए जेल से दूर निकल आए और फिर हमने पूरी कुव्वत से दौड़ना शुरू कर दिया। हमारी हालत बहुत मखदूश थी क्योंकि हमारे जिस्मों पर कैदियों के कपड़े थे और हाथों में पुलिस से छीनी हुई राइफलें। ताहम हम दौड़ते रहे और फिर काफ़ी दूर चलकर हमें रोशनी नज़र आई। ये कोई रिहायशी इलाका था। हम उस इलाके में पहुंच गए।